Today we will see how to examine the respiratory system. Before proceeding to the examination part, we must know what are the common complaints of a patient which suggest that the respiratory system may likely be involved. आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में कॉमन कंप्लेंट्स क्या हो सकते हैं पेशेंट के. The common complaints may be breathlessness, which is also called shortness of breath, medically called dyspnea. This breathlessness may be at resting condition or it may be effort dependent. Breathlessness may suggest respiratory involvement as well as cardiac problem. When the breathlessness is there on the lying down posture, that is called orthopnea, and it usually suggests cardiac failure. Though in respiratory problem you may also get. Then there may be wheezing. Wheezing is high-pitched musical sound usually heard during expiration. If wheezing is present, usually suggests asthma or COPDs, chronic obstructive pulmonary diseases. Then the other complaint may be simply cough. The cough may be dry cough or purulent or productive cough. Also, depending upon the duration of cough, it may be acute cough or chronic cough. If the cough is persisting for less than 3 weeks, that is comes under acute cough. And if it is persisting for 8 weeks or more than 8 weeks, that comes under chronic cough. और इन दोनों के बीच में जो ड्यूरेशन होता है 3 to 8 weeks, that is subacute cough. The cough may contain sputum, that is called expectoration, and if there is sputum is present in cough, then you have to ask for the volume of the sputum, color of the sputum, then consistency of the sputum. The sputum or expectorant we got, it may contain pus or it may also contain blood. If there is presence of blood along with the cough, that is called hemoptysis. So you have to ask for if there is some blood which is coming along with the cough or not. HAEMOPTYSIS, hemoptysis. You have to rule out. ये blood आपको oral cavity से भी आ सकता है, gum से भी आ सकता है, okay, nasal lid से भी आ सकता है. So you have to rule out if it is coming from the chest or if it is coming from the oral area. The similar term is hematemesis, HAEMATEMESIS, hematemesis, which is the vomiting of blood. Hematemesis usually suggests GIT involvement, and hemoptysis usually suggests respiratory involvement. Then the other complaint may be simply chest pain. Chest pain may suggest cardiac problem as well as respiratory problem. दोनों में मिल सकता है chest pain. There will be different causes for the chest pain in respiratory diseases, like if there is accumulation of excess fluid in the pleural space, that is called pleural effusion, or pneumothorax, in which the air accumulates in between the pleural space. Okay, there will be other causes as well. The patient may simply present with fever. Fever से लेके भी आ सकता है patient. And you have to ask for the loss of appetite, weight loss. You should also ask for the bluish discoloration of the skin, mucous membrane conjunctiva, that is called cyanosis. Then there will be bulbous enlargement of the distal phalanx of the finger, okay, that is called clubbing. There are certain respiratory problems in which this clubbing or cyanosis may be present, though you may also see cyanosis or clubbing in other system involvement. Then you should also ask for the quality of sleep. Then before switching to the examination part, we should also ask the history. History is very important, especially in respiratory problem. You must ask the family history, the occupational history, the smoking history,
and the drug history. Okay, apart from the chief complaints, then you should also do the general examination before switching to the systemic examination. You should also record the vitals: pulse, blood pressure, respiratory rate, temperature. Then we will see how to examine the respiratory system. So first, before starting the examination, we should be on the right side of the subject. जैसे मैं right side में हूँ subject के, and you should take the consent of the subject. मेरा नाम डॉक्टर साबिर है और आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश। क्या मैं आपका चेस्ट का एग्जामिन करना चाहता हूँ, क्या आप इसके लिए राजी हैं? करो कर लो। Okay, thank you. So I will show how to examine the respiratory system. So the examination of the respiratory system, it includes the examination of the upper respiratory system and the lower respiratory region. Upper respiratory system examination includes examination of the nasal area. We can lift the tip of the nose and you can look for any secretions or any obstruction, foreign body, any collection of blood or anything. Okay, examine the oral cavity. मुंह खोलिए तो, माउथ पूरा खोलिए, and you can see for any redness and any patches in the oral cavity region, and you can look for the inflammation of the tonsils. Okay, then we have to move to the examination of the lower respiratory region, that is the examination of the chest region. So preferably the examination of the respiratory system is done in the sitting posture. Okay, sitting posture में करना चाहिए, better है. So the examination of the chest, it includes the inspection, palpation, percussion and auscultation. These are the headings under which you examine the respiratory system. Okay, or any system you can examine under these headings. Examination by inspection is done just by looking at that area. So for that, the subject should be properly exposed from the shoulder to the waist. You have to expose the subject. So you can see the subject has been exposed, and for inspection, so you have to look at the chest region. Just you do not have to touch. Inspection में just inspect करते हुए area in all the regions, the apical region, the middle portion, the lower portion, the front of the chest, the back of the chest. Okay, पीछे भी देखते हैं. Then axillary portion. What will you look for in inspection? The first point is the shape of the chest. Normal shape of the chest is ellipsoid, elliptical in cross section. Elliptical means the transverse diameter जो होगा, that is more than the epidiameter. So transverse diameter you can see it is looking like transverse diameter ज़्यादा लग रहा है epidiameter से. So elliptical shape chest होता है, normal जो chest होता है, shape होता है. Okay, then there may be abnormality of the shape of the chest, like there is pectus carinatum होता है, उसमें क्या होता है, जो there is forward bending of the sternum, pectus carinatum, pigeon chest कहते हैं उसको. Okay, and that is seen in rickets. There may be pectus excavatum, और अंदर की तरफ excavate हो जाएगा, that is called pectus excavatum. Funnel shaped chest होता है. The epidiameter is greater, or it will be equal to the transverse diameter. That is seen in barrel shaped chest मिलता है, emphysema में मिलता है. Okay, so first is the shape of the chest. You have to look, you can see it is elliptical type का लग रहा है. Transverse diameter is more than the epidiameter. Okay, and now the second point is the symmetry of the chest. Symmetry means दोनों साइड का chest, both sides of the chest is seems equal. दोनों एक तरह का लग रहा है, दोनों साइड का chest. Okay, that is called symmetrical chest. Okay, so you can see the shape of the symmetry of the chest is bilaterally symmetrical. You have to write. Okay, then the important point is you have to see, look for the respiratory movements. Respiratory movement के लिए you have to count in the respiratory movement you have to count the respiratory rate. Normal respiratory rate is 12 to 18 breaths per minute. So for that
you have to look for when you inspire or expire, there is movement of the thoracic area as well as the abdominal area. चेस्ट भी आपका राइज करता है और एब्डोमेन भी मूव करता है. ओके, सो फॉर द रेस्पिरेटरी रेट काउंटिंग व्हाट यू हैव टू डू, you have to look for the inspiration and expiration, that is one cycle of breath. So इस तरह से 60 seconds में 1 minute में काउंट करना है. So you can see I am just counting here. So you can look for the, so इसको हम जब काउंट करते हैं तो इनडायरेक्टली काउंट करते हैं, so that patient is not aware, conscious नहीं हो जाए. अगर हम डायरेक्ट इस पर ध्यान देंगे तो पेशेंट क्या होगा, वो कॉन्शियस हो जाएगा. तो इनडायरेक्टली करते हैं हम उसको, पल्स हम एग्जामिन करते हैं एंड पेशेंट को लगता है कि मेरा पल्स देख रहा है, बट वी आर काउंटिंग द रेस्पिरेटरी रेट. यू कैन सी आई एम जस्ट काउंटिंग हियर फॉर 1 minute you have to count. You can see. So the respiratory rate here is 16 breaths per minute. Okay, 16 breaths इसमें 1 minute में काउंट किया तो 16 breaths आ रहे पर मिनट. तो ये आपका जब रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल से, दैट इज कॉल्ड टैकिपनिया. नॉर्मल इज 12 to 18 breaths per minute. अगर ये उससे ज़्यादा हो रहा है दैट इज कॉल्ड टैकिपनिया. कम हो जाता है तो उसको हम ब्रैडिपनिया कहते हैं. तो रेस्पिरेटरी मूवमेंट में रेस्पिरेटरी रेट पहला हो गया. देन डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन जो कर रहा है ये सब्जेक्ट, ये देखो ये शैलो तो नहीं है. शैलो मीन्स नॉर्मल एक इंस्पिरेशन एक्सपायर करता है तो क्या होता है, एक ऊपर जाता है और नीचे जाता है. शैलो मीन्स जल्दी जल्दी तो नहीं कर रहा है वो, और एक डीप रेस्पिरेशन, बहुत गहरी गहरी ले रहा है सांस, तो दैट इज कॉल्ड डीप रेस्पिरेशन. सो डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन यू हैव टू सी, लुक फॉर. नॉर्मल डेप्थ लग रहा है इसमें, नॉर्मल डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन. देन यू हैव टू लुक फॉर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. टाइप ऑफ रेस्पिरेशन मीन्स जब आप सांस लेते हो तो चेस्ट भी एक्सपैंड करता है और रिकॉइल होता है, उसी तरह एब्डोमेन भी कर रहा है. तो इसमें हम यूजुअली मेल में क्या होता है, जो एब्डोमिनल मूवमेंट इज मोर प्रोमिनेंट. दोनों जब सांस लेते हो तो दोनों एक्सपैंड करता है, चेस्ट भी कर रहा है, एब्डोमेन भी कर रहा है. लेकिन मेल में एब्डोमिनल मूवमेंट इज मोर प्रोमिनेंट. यू कैन सी. और फीमेल में क्या होता है, थोरैको एब्डोमिनल होता है. थोरैसिक मूवमेंट इज मोर प्रोमिनेंट. सो हियर इट इज एब्डोमिनोथोरैसिक. Abdominothoracic. You can see here abdominal movement is more prominent. Okay. Then you have to look for the expansion of the chest. Subject जो इंस्पायर कर रहा है, एक्सपायर कर रहा है, तो ये मूव कर रहा है, तो दोनों आप देखोगे एक्सपैंड दोनों इक्वल कर रहा है, नहीं कर रहा है ना. एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट इज इक्वल ऑन बोथ द साइड्स. सो दिस इज एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट. यू हैव टू लुक फॉर, पीछे भी देखना है. ओके, यू हैव टू लुक फॉर इन ऑल द रीजन्स ऑफ द चेस्ट expansion. Then you have to look for the position of the trachea. So tracheal, you can see, आप सीधा देखिए. So this is the tracheal ring which is going in the midline. Normally it is midline. You can see here. So just अगर lean and thin individual होगा तो बहुत आपको clear नजर आएगा. लेकिन यहाँ पे देखो, फिर भी यहाँ पे you can see here the tracheal ring is, it seems it is central. Okay. सो अगर ट्रैकियल डेविएशन होगा तो आपको इधर ट्रैकियल रिंग शिफ्टेड नजर आएगा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है. लेकिन हम कंफर्म करेंगे, वी विल कंफर्म इट इन पैल्पेशन. ओके, ट्रैकियल रिंग इज सिम सेंट्रल. यू कैन सी पोजिशन ऑफ ट्रैकिया सिम सेंट्रल हियर. देन यू हैव टू ऑल्सो लुक फॉर एपेक्स बीट. एपेक्स बीट क्या होती है, पोजिशन ऑफ द एपेक्स बीट. एपेक्स बीट इज द कार्डियक पल्सेशन विच इज लोअर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट. लोअर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट पॉइंट ऑफ डेफिनिट कार्डियक पल्सेशन. तो इंस्पेक्शन में हम देख सकते हैं यहाँ पे, जस्ट यू हैव टू लुक फॉर, यहाँ पे दिखना है आपको इस लेवल पे आकर कि जो कार्डियक पल्सेशन जो विजिबल है वो किस रीजन में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है. कैन सी हियर इस तरह से. सो आई एम एबल टू विजुअलाइज. यहाँ पे लग रहा है आपको कि यहाँ पे कार्डियक पल्सेशन विजिबल है. दिस में विद द एटिकल इंपल्स और एपेक्स बीट. इस तरह से आपको देखना है. So in the inspection you can just tell whether it is visible or not visible. Okay. तो यहाँ पे visible है just near the nipple area. Inspection में you can just write like this. So इसको हम define कब करेंगे, exact position कब बताएंगे. In the palpation you have to write in which intercostal space it is lying. So inspection में just आपको what you have to write,
that it is visible or not visible. I can see it is visible here in just below the nipple area. You have to also look for any prominence of the accessory muscles of respiration. So there are some accessory muscles of inspiration like sternocleidomastoid muscle, Allen-Azzi muscle. तो क्या होता है जब पेशेंट रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी में रहता है तो क्या होता है वो उसके जो एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन है वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं लाइक स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। यहाँ पे कोई ऐसा प्रोमिनेंस नहीं दिख रहा, यू कैन सी हियर नो एनी प्रोमिनेंस ऑफ एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, देन यू हैव टू लुक फॉर द स्किन, एनी स्कार मार्क, एनी बल्जिंग or any depression on the chest, any engorged veins on the chest. So there is no other nothing like that. So this is the inspection. Now coming on to the palpation part. Palpation, what we have to do, we have to confirm the findings of inspection. Palpation में हम ये करते हैं. So palpation में you can touch the subject. Palpation करने से पहले आपको क्या करना है? You have to rub your palm. Okay. So and you have to be gentle in palpation. So in palpation what we look for? Temperature, tenderness and texture. So you are going to confirm the findings of inspection. So temperature हम टच करेंगे, अगर फेब्राइल सब्जेक्ट होगा तो आपको लगेगा कि ये टेम्परेचर इंक्रीज्ड है. You can write febrile or normal temperature. Okay. Then you have to look for tenderness. इसको प्रेस करेंगे, अगर इसको सब्जेक्ट को पेन होगा तो सब्जेक्ट का फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होगा. दैट इज कॉल्ड टेंडरनेस. टेंडरनेस इज अ साइन दैट इज पेन ऑन पैल्पेशन. जब करने पे उसको जो दर्द होता है तो उसको हम टेंडरनेस कहते हैं. सो टेंडरनेस इज एलिसिटेड बाय द एग्जामिनर एंड पेन इज टोल्ड बाय द पेशेंट. सो पेन इज अ सिम्टम एंड टेंडरनेस इज अ साइन. ओके, सो टेम्परेचर, टेक्सचर इज ऑल्सो स्मूथ. सो यू हैव टू लुक फॉर the palpation. Then you have to confirm the location of trachea. You have to confirm the location of trachea. Location of trachea is done by this method. You can see two fingers, this index finger and the ring finger. You have to put on the this sternoclavicular joint. यहाँ पे जो joint आ रहा है, और with the middle finger you can see here ये ट्रैकियल रिंग को आपको पैल्पेट करना है इन द मिड लाइन. सो नॉर्मली इट इज इन मिड लाइन. ओके, सो कैसे कहेंगे कि ये मिड लाइन है? यू कैन सी हियर यहाँ पे ऑरिजिन हो रहा है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल का, बोथ साइड्स ऑफ द ट्रैकियल रिंग. तो ये जो स्पेस है, ये स्पेस देखना है. द स्पेस शुड बी इक्वल ऑन बोथ द साइड्स. ओके, अगर शिफ्टिंग होगा, सपोज दैट किसी पेशेंट का ट्रैकिया लेफ्ट साइड शिफ्टेड हो गया, लेफ्ट साइड शिफ्टेड हो जाएगा तो क्या होगा, जो लेफ्ट साइड का जो स्पेस है इन बिटवीन द ट्रैकियल रिंग एंड द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल वो ऑब्लिटरेट हो जाएगा, कम हो जाएगा, और दूसरे साइड में इट विल इंक्रीज. ओके, एंड वन मोर थिंग इज दैट द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल का जो क्लैविकुलर हेड है, ओके, जो क्लैविकुलर ऑरिजिन है उसका, वो जो उस साइड का जो मसल है जिस साइड में शिफ्टिंग होगा ट्रैकिया का वो प्रोमिनेंट हो जाता है. दैट इज कॉल्ड ट्रेल साइन. उसको हम ट्रेल साइन कहते हैं. ओके, सो हेयर यू कैन सी इट इज मिड लाइन. तो इसमें जो ट्रैकियल शिफ्टिंग होता है, ये दो क्वेश्चन पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड दैट ट्रैकिया अगर शिफ्टिंग है, सपोज दैट किसी का लेफ्ट साइड शिफ्टेड है ट्रैकिया, ओके, तो क्या सोचेंगे, व्हाट विल यू थिंक ऑफ? देयर में बी द पुशिंग पैथोलॉजी. कुछ ऐसा चीज़ है इधर राइट साइड में जो लेफ्ट साइड में पुश कर रहा है. ओके, सो पुशिंग पैथोलॉजी हो सकता है, लाइक पुशिंग पैथोलॉजी ऑन द राइट साइड में भी accumulation of fluid in the pleural space, that is called pleural effusion. Pleural effusion और जो अगर large pleural effusion होता है massive, तो उस साइड में क्या होता है, शिफ्टिंग हो जाता है ऑपोजिट साइड. न्यूमोथोरैक्स, ओके, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स होगा तो ऑपोजिट साइड में शिफ्ट होगा. ओके, और सेम साइड में सपोज दैट अगर लेफ्ट साइड किसी पेशेंट का शिफ्टेड है ट्रैकिया, तो राइट साइड में अगर हमने चेक किया उधर नॉर्मल है, तो व्हाट विल यू थिंक ऑफ? देयर इज समथिंग there in the left side of the lung which is pulling the trachea towards itself. उसको हम pulling pathology कहते हैं. Pulling pathology, there may be fibrosis of the lung or collapse of the lung. Okay, वो pulling pathology होता है. This is the position of the trachea. Then position of apex beat. This is very important. Very frequently asked.
पोजीशन ऑफ द एपेक्स बीट, यू हैव टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द एपेक्स बीट। एपेक्स बीट का जो नॉर्मल लोकेशन होता है वो लेफ्ट साइड फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस 8 to 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिड एक्सटर्नल लाइन। जो मिड एक्सटर्नल लाइन है उसे 8 to 10 सेंटीमीटर अवे होता है नॉर्मल लोकेशन, ओके, और जस्ट मीडियल टू द मिड क्लैविकुलर लाइन, ये हो सकता है। अब इसको कैसे लोकेट करेंगे, वेदर इट इज इन द नॉर्मल लोकेशन या शिफ्टिंग तो नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, वी यूज दिस मेथड। यू हैव टू यूज योर पाम इन दिस एरिया, ओके, ये जो प्रीकॉर्डियल एरिया वहाँ पे निपल एरिया में रखना है इधर, एंड जहाँ पे आपको मैक्सिमम पल्सेशन एंड आउटर मोस्ट पल्सेशन फील हो रहा है उससे आपको अल्नर बॉर्डर पे फील करना है। देन यू हैव टू लोकेट विद योर इंडेक्स फिंगर, ये इस तरह से। इंडेक्स फिंगर के बाद आपको पेन से यहाँ पे मार्क करना है, यहाँ पे पेन से मार्क कर दिए, ओके। पेन से मार्क करने के बाद आपको काउंट करना है कि जो हमने लोकेट किया है ये किस इंटरकॉस्टल स्पेस में। तो द लैंडमार्क पॉइंट फॉर काउंटिंग द इंटरकॉस्टल स्पेस इज द स्टर्नल एंगल। ये स्टर्नल एंगल होता है, दैट इज द एलिवेशन, दैट इज द जंक्शन बिटवीन द मैन्यूब्रियम स्टर्नाई एंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम। ये इसका स्टर्नल एंगल। स्टर्नल एंगल से लेफ्ट साइड जाएंगे तो सेकंड रिब को कॉरेस्पॉन्ड करता है। सेकंड रिब, देन सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, थर्ड रिब, देन थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, देन फोर्थ रिब, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, देन फिफ्थ रिब एंड फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। यू कैन सी ये जो हमने लोकेट किया था यहाँ पे, ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में आ रहा है, लेफ्ट साइड फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, एंड वी हैव टू मेजर दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमें मेजर करना है, ये अराउंड 8 सेंटीमीटर के आ रहा है, ओके। तो वी कैन राइट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द apex beat या apical impulse as the left side fifth intercostal space 8 centimeter away from the mid external line, ओके। तो ये आपको लोकेशन बताना, या मिड क्लैविकुलर लाइन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर आपको देखना है कि ये कहाँ पे लोकेशन है, ओके। इट इज यूजुअली जस्ट मीडियल टू द मिड क्लैविकुलर लाइन। ये हो गया आपका पोजिशन ऑफ ट्रैकिया, देन पोजिशन ऑफ एपेक्स बीट। इन द नेक्स्ट पॉइंट इन पाल्पेशन इज यू हैव टू मेजर द transverse diameter and AP diameter. So you can see you have to use the 2 cardboards and the measuring tape. You can see here इस तरह से आपको करना है। So here you can see it is 12 inch transverse diameter है, then AP diameter. For AP diameter we have to do like this. इसको पकड़िए तो, okay. So we have to use the 2 cardboards. So you can see it is 8.5 inch. 8.5 inch is the AP diameter and 12 inch is the transverse diameter. So normally जो AP diameter और transverse diameter का जो ratio होता है that is 7:5. That is called Hutchinson's index. Okay. So here you can see the transverse diameter is more than the AP diameter. Okay. Then you have to look for the circumference of the chest during inspiration and expiration and the expansion of the chest. So you have to also measure the chest expansion. So normal resting inspiration में कितना है और normal resting expiration में chest circumference कितना है, and then deep inspiration and deep expiration. हाँ, सांस लेकर रुकिएगा, सांस लेकर रुकिए। You can see here it is 34.5, okay. then सांस लेके छोड़िए, सांस ले, हाँ, it is 34 inches, okay. then लंबी सांस लीजिए, हाँ, you can see here it is 35 inches, लंबी सांस छोड़िए, it is 33.5 inches. so deep inspiration और deep expiration, तो chest expansion इनका नॉर्मल जो चेस्ट एक्सपेंशन होता है वो डीप इंस्पायर कराना है सब्जेक्ट को और डीप एक्सपायर कराना है और देखना है कितना एक्सपैंड कर रहा है, ओके। नॉर्मली इट इज 8 to 10 सेंटीमीटर का होता है एक्सपेंशन, ओके। वी कैन ऑल्सो लुक फॉर द सिमेट्री ऑफ चेस्ट एक्सपेंशन, ओके। इस तरह से आपको चेस्ट एक्सपेंशन का सिमेट्री देखना है। लंबी सांस लीजिए, ये दोनों साइड में एपिकल एरिया, जैसे लीजिए,
दोनों साइड में जो आपका मूवमेंट हो रहा है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के साथ में इक्वल होना चाहिए. देन इन द मिडिल एरिया यू हैव टू डू द सिमेट्री ऑफ चेस्ट एक्सपेंशन. लंबी सांस लीजिए. यू कैन सी बोथ साइड्स ऑफ द थंब आर मूविंग इक्वली. फिर छोड़िए, पूरा छोड़िए नीचे. हाँ, फिर नीचे में करना है लोअर एरिया में लंबी सांस. यू कैन सी हियर बोथ साइड्स ऑफ द थंब आर मूविंग इक्वली. नहीं छोड़िए. ओके. सिमिलरली ऑन द बैक साइड ऑल्सो. तो लंबी सांस लीजिए. तो यू कैन सी बोथ साइड्स ऑफ द थंब आर मूविंग इक्वल. इसी तरह बीच कर लंबी सांस. ओके, छोड़िए. वेरी गुड. लंबी सांस. सो देयर इज सिमेट्री ऑफ द चेस्ट एक्सपेंशन इज इक्वल ऑन बोथ द साइड्स. अगर कोई डिजीज साइड होगा तो उस साइड में क्या होगा, एक्सपेंशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. देन कमिंग ऑन टू द वोकल फ्रेमिटस. एक पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड टैक्टाइल वोकल फ्रेमिटस. वोकल फ्रेमिटस इज, वोकल मीन्स बोलना. जब आप बोलते हो तो देयर इज सम वाइब्रेशन विच इज प्रोड्यूस्ड. व्हेन यू फोनेट द वाइब्रेशंस which is produced, that is transmitted to the chest area. वो chest area में आ जाता है and that can be perceived with your palm of the hand और ulnar border of the hand. palm of the hand से या ulnar border से हम perceive कर सकते हैं उसको. ओके. सो इसमें what you do to the subject को बोलते हैं 1 2 3 बाइसिलेबल वर्ड रिपीट करने के लिए. 1 2 3 99 या 1 2 3. आप ऐसा करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3. इस तरह से आपको बोलते रहना. ठीक है. Yes, you can see the intensity on both the sides which I am perceiving is equal. बोलते जाइए. Intercostal space में आपको with the ulnar border of the hand. Very good. अब इसको थोड़ा पीछे कर लीजिए. ऐसे कर लीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे. हाँ, वेरी गुड. इस तरह से हम एक्सिलरी एरिया में भी करेंगे. बोलिए 1 2 3 1 2 3 बोलिए. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Okay. See, in all the areas you have to look for. थोड़ा पीछे बोलिए. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Sit down. So I can see there are equal vibrations which I am able to perceive in all the areas of the lung. So tactile vocal fremitus is equal on both sides of the lung. Okay, so there are certain conditions in which vibrations increase हो जाएंगे. That vocal fremitus may be increased. Okay, tactile vocal fremitus may be increased. Like जब लंग का सॉलिडिफिकेशन हो जाता है जिसको हम कॉन्सोलिडेशन कहते हैं, निमोनिक पैचेज हो जाते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, द टैक्टाइल वोकल फ्रेमिटस इज इंक्रीज्ड. ओके. और कुछ कंडीशन होते हैं जिसमें डिक्रीज या एब्सेंट हो जाते हैं. लाइक अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए रेस्पिरेटरी पैसेज में, ओके, फाइब्रोसिस हो जाए उसमें डिक्रीज हो जाते हैं. एब्सेंट हो जाएगा अगर फ्लूइड हो जाता है तो आपको मिलेगा ही नहीं वाइब्रेशन. यू विल नॉट, देयर विल बी वोकल फ्रेमिटस, टैक्टाइल वोकल फ्रेमिटस विल बी एब्सेंट. सपोज दैट किसी का फ्लूइड है राइट साइड में, राइट लैंग में, तो लेफ्ट साइड में तो आपको वाइब्रेशन फील होगा और उस साइड में आपको डिजीज साइड में नहीं हो जिस साइड में फ्लूइड होगा. ओके. सो दैट इज एब्सेंट टैक्टाइल वोकल फ्रेमिटस. ओके. देन कमिंग ऑन टू द परकशन, देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर परकशन. नॉन डोमिनेंट हैंड का जो फ्लेक्सीमीटर फिंगर है वो परकसिंग एरिया में रखते हैं एंड द डोमिनेंट हैंड का जो मिडिल फिंगर है वी यूज इट फॉर टैपिंग. इसको हम टैप करते हैं. ओके. एंड आर्टिफिशियल, वी क्रिएट आर्टिफिशियल वाइब्रेशंस विद द हेल्प ऑफ द दिस टू हैंड्स. फ्लेक्सीमीटर फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड डोमिनेंट हैंड का मिडिल फिंगर्स हम टैप करते हैं इस तरह से. सो देयर इज सर्टेन साउंड विच आर प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड परकशन नोट. So start from the apical area. इस तरह का you can see there is certain resonant sound that is. जब lungs के ऊपर में करेंगे, lung parenchyma के ऊपर में, तो the sound which is coming, which is heard, that is called resonant sound. You can see, you can hear this sound. Okay. So you have to do it. And यहाँ पे cardiac area आ जाता है, that is called cardiac dullness. अगर कोई solid organ आ जाएगा, if you will percuss over that area, that is called dull sound. So यहाँ पे तो रेजोनेंट आ रहा है, यहाँ भी रेजोनेंट है कि लंग्स का एरिया रेजोनेंट. हियर इट इज डल, स्लाइट डलनेस इज देयर. कैन सी
यहाँ पे रेजोनेंट है, यहाँ पे डल आ रहा है। सो हेयर जो ऊपर से हम नीचे करेंगे इस तरह से, ओके। और जब आप डाउन द इंटरकॉस्टल स्पेस करेंगे राइट साइड में, तो रेजोनेंट से क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू द डल साउंड, बिकॉज अप टू 6th इंटरकॉस्टल स्पेस लंग का बॉर्डर होता है इन द फ्रंट एरिया, ओके। 6th इंटरकॉस्टल स्पेस फ्रॉम डाउनवर्ड्स वहाँ पे डलनेस आ जाएगा लाइक दिस। अगर डलनेस आपको करना है, यू कैन सी है इस तरह से डल आ रहा है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ परकशन? परकशन का पर्पस ये है दैट यू वांट टू नो द बॉर्डर्स ऑफ द लंग एंड यू वांट टू नो द अंडरलाइन लंग टिश्यू। तो अंडर में जो अगर एयर पे अगर आप परकस करोगे, अंडर में अंडरलाइन ऑर्गन में अगर एयर है तो वो रेजोनेंट साउंड आएगा, अगर सॉलिड ऑर्गन है तो वो डल आएगा, ओके। एंड अगर ज़्यादा हाइपर रेजोनेंट भी आया तो न्यूमोथोरैक्स में आ जाता है, रेजोनेंसी बढ़ जाती है। देन देयर में भी डल नोट जब सॉलिड ऑर्गन पे कर रहे हैं, व्हेन देयर इज स्टोनी डल भी एक होता है परकशन नोट, दैट इज टिपिकल ऑफ प्लूरल फ्लूइड, अगर फ्लूइड हो जाता है प्लूरल फ्लूइड, ओके। उसी तरह आगे कीजिए, इधर भी हर एवरी एरिया यू हैव टू डू द परकशन। Anterior axillary line, mid axillary line, then posterior axillary line. पीछे हो जाएंगे। So here also you have to focus. You can see there is resonant sound. All over the lung it will be resonant. बॉर्डर्स ऑफ द लंग के लिए, बॉर्डर्स ऑफ लंग के लिए एंटीरियरली जब करोगे राइट लंग में तो 6th इंटरकॉस्टल स्पेस तक आएगा रेजोनेंट साउंड, देन एक्सिलरी में 8th एंड बैक में 10th इंटरकॉस्टल स्पेस, एंड द रेजोनेंट साउंड विल कन्वर्ट टू डल नोट इन द राइट साइड। एंड लेफ्ट साइड में क्या होगा, रेजोनेंट साउंड बीच में कार्डियक डलनेस आएगा और वो क्या होगा, नीचे में टिम्पैनिक साउंड आ जाएगा, ओके। तो आपका जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट होगा। द लास्ट पार्ट इज द ऑस्कल्टेशन विच इज डन विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। एंड स्टेथोस्कोप लगाने से पहले आपको उसका नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड सुनना है, ओके। यू शुड ट्राई टू लिसन टू द ब्रीदिंग साउंड्स। तो नॉर्मल जब सब्जेक्ट ब्रीथ करता है तो वी आर नॉट एबल टू परसीव द साउंड, हमें फील नहीं होता है दूसरे के साउंड्स के बारे में, ओके। तो लेकिन रेस्पिरेटरी अगर डिफिकल्टी में होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा, तो क्या होगा, आपको दूर से उसका साउंड, आपको विस्लिंग साउंड या स्ट्राइडर साउंड, यू मे हियर सम साउंड। तो इसका आई एम जस्ट लिसनिंग, देयर इज नो साउंड विच इज कमिंग, सो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ऐसा लग नहीं रहा है विदाउट ऑस्कल्टेशन। नाउ वी विल यूज द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप यूज करने से पहले आपको चेक करना है वेदर द डायफ्राम साइड इज वर्किंग और नॉट, अगर नहीं होगा तो चेंज करना होगा, ओके। सो इट इज ओके एंड यू हैव टू, इस तरह से हम लगाते हैं, फॉरवर्ड रहता है इसका ईयर नॉब, देन यू हैव टू इस तरह से आपको स्टेथोस्कोप लगाना है। स्टेथोस्कोप लगाने से पहले सब्जेक्ट को बताना है, माउथ को ओपन करके लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेने के लिए आपको एग्जामिनर शुड टेल हाउ टू डू इट। इस तरह से आपको सांस लेना है, लंबी लंबी सांस मुंह खोल कर, एंड यू हैव टू ऑस्कल्टेट। एक इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करेगा वहीं पे सुनिए, इधर से स्टार्ट करना है यहाँ, देन यू गो डाउन, लंबी सांस लीजिए, यू हैव टू ऑस्कल्टेट द कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया, इधर किया तो आपको इधर करना है, सांस लीजिए, देन यू हैव टू ऑल्सो ऑस्कल्टेट द एक्सिलरी एरिया, पीछे कर लीजिए, पीछे कर लीजिए, पीछे। कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया मस्ट बी ऑस्कल्टेटेड, पीछे आ जाइए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस। तो वी हैव टू फोकस ऑन द रेस्पिरेटरी साउंड विच इज कमिंग ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। जब आप इसको टच करोगे तो स्किन का भी फ्रिक्शन होता है, तो उसका भी कुछ साउंड आएगा, देयर इज साउंड विच इज कमिंग फ्रॉम द स्किन,
हेयर साउंड है तो उसके भी साउंड आएंगे, तो यू हैव टू फोकस ऑन द ब्रीदिंग साउंड। लंग पैरेन्काइमा के ऊपर में जो साउंड आता है जो मैं सुन पा रहा हूँ, दैट इज इंस्पिरेशन इज लिटिल बिट लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है दैन द एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन इज लॉन्गर दैन द एक्सपिरेशन एंड देयर इज नो एनी गैप बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, दैट इज कॉल्ड वेसिकुलर ब्रीदिंग साउंड। वेसिकुलर ब्रीदिंग साउंड कहते हैं, दैट इज नॉर्मल साउंड ऑल ओवर द लंग पैरेन्काइमा। स्पेशली एक्सिलरी एरिया में आपको ज़्यादा अच्छे से वेसिकुलर साउंड सुनाई देगा, है ना। यहाँ पे लंबी सांस लीजिए। एंड द इंफ्रा स्कैपुलर एरिया बहुत आपको टिपिकल वेसिकुलर ब्रेथ साउंड मिलता है, एंड वेसिकुलर ब्रेथ साउंड इज हर्ड ऑल ओवर द लंग पैरेन्काइमा। ओके, इंस्पिरेशन इज लॉन्गर दैन द एक्सपिरेशन एंड देयर इज नो एनी गैप बिटवीन द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन इज लो फ्रीक्वेंसी साउंड होता है, ओके, लो पिच साउंड। देन there is another sound which is may normally be heard, that is called bronchial breathing, but bronchial breathing usually आपको लंग पैरेन्काइमा के ऊपर में नहीं मिलेगा, ओके, इट विल बी हर्ड। ये साइमुलेट करता है जब आप ट्रैकिया पे जब रखोगे तो दैट इज साइमुलेटिंग द ब्रीदिंग, ब्रोंकियल ब्रीदिंग। सो इट इज लिटिल बिट हार्शर साउंड, लाउड एंड क्लियर हार्श साउंड, एंड ये आपको ब्रोंकियल ब्रीदिंग को साइमुलेट करता है। तो इस तरह का साउंड अगर लंग पैरेन्काइमा में मिल रहा है, that is abnormal sound, okay, like in consolidation it is seen, okay, bronchial breathing. Now there may be some extra sound, additional sound which is called added sound, okay, so that is not normal। वो दो तीन तरह का आपको added sound आपको याद रखना है, that is called crepitations। इसमें तो नहीं मिल रहा है सब्जेक्ट में, नॉर्मल वेसिकुलर ब्रीदिंग साउंड इज देयर ऑल ओवर द चेस्ट एरिया। लेकिन किसी डिजीज पेशेंट में आपको तीन तरह के एडेड साउंड मिल सकते हैं, एक्स्ट्रा साउंड, दैट इज कॉल्ड क्रेपिटेशंस, जिसको मॉइस्ट साउंड भी कहते हैं, ओके, एंड देयर इज व्हीजिंग साउंड विच इज व्हिस्लिंग साउंड, एंड देयर इज प्लूरल रब, वो फ्रिक्शन टाइप का साउंड होता है। सो क्रेपिटेशंस जो होते हैं वो फाइन क्रेपिटेशंस भी होते हैं और कोर्स क्रेपिटेशन होते हैं। क्रेपिटेशंस किस तरह के साउंड होते हैं, वो लाइक इसको रिजेंबल कर सकते हैं, जब आप हेयर्स को आप रब करोगे एक दूसरे के ऊपर में, ओके, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो रिजेंबल करता है क्रेपिटेशंस के, क्रेप्स को, ओके। एंड उसी तरह व्हिस्लिंग साउंड इज व्हीज साउंड होता है, वो व्हिस्लिंग साउंड होता है, स्पेशली एक्सपिरेशन में मिलता है, लाइक ऑब्स्ट्रक्शन अगर है, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, स्पेशली ब्रोंकियल एस्थमा के पेशेंट में मिलता है। उसी तरह प्लूरल रब होता है, फ्रिक्शन टाइप ऑफ साउंड विच इज देयर हर्ड मेनली ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, एंड दैट इज मेनली ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन इन द प्लूरा, प्लूराइटिस से मिलता है, okay। Then there is last important point is the vocal resonance। vocal resonance ये आपको auscultation में आपको करना है, and vocal resonance is the counterpart of vocal fremitus which we have done in the palpation। palpation में हमने tactile vocal fremitus किया था, सब्जेक्ट को बोला था हमने 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3 बोलने के लिए, और हमने दोनों साइड में इसके परसीव किया था इंटेंसिटी वाइब्रेशन को, ओके, उसको जब वो फोनेट करते हैं, उसी को हम स्टेथोस्कोप से उसको हम हियर करते हैं। लंबी सांस, ये 1 2 3 1 2 3 बोलिएगा इस तरह से, तो इसको हर जगह सेम आ रहा है, इसके बोलिए। सो आई कैन हियर दैट देयर इज द साउंड इज कमिंग इक्वली ऑन बोथ द साइड्स एंड इट इज कमिंग फ्रॉम ए लिटिल डिस्टेंस, like it coming from the diaphragm of the stethoscope, okay। अगर ये क्या होता है, लंग का सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, पीछे हो जाइए, हाँ बोलिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सो इक्वल दोनों साइड में इक्वल इंटेंसिटी का आ रहा है, ओके। तो नॉर्मल है इसका वोकल रेजोनेंस एंड वोकल फ्रेमिटस। अगर ये हमें ऐसा नॉर्मली क्या लगता है, इट सीम्स दैट द साउंड इज कमिंग फ्रॉम ए लिटिल डिस्टेंस जब वो बोल रहा होता है, तो दैट इज नॉर्मल, ओके, वोकल रेजोनेंस इज नॉर्मल। अगर ये लगेगा कि अगर कोई डिजीज पेशेंट्स में, जिसमें स्पेशली कंसल्टेशन में जब सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, तो क्या होता है, जब ये बोलता है सब्जेक्ट तो ऐसा लगता है कि ये साउंड हमें नज़दीक से मिल रहा है और नज़दीक से मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकोफोनी। और एक और कंडीशन होता है जब ये साउंड ऐसा लगता है कि मेरे कान में ही बोल रहा है, जब कंसोलिडेशन और इंक्रीज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हिस्परिंग टेक्टोरलिटी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट respiration examination, respiratory examination. Thank you very much for patient listening. Thank you.